As you know, in aldehyde ketone, what are the topics which are over? Then definition of aldehyde ketone is over. Then after nomenclature of aldehyde ketone is over. Then after structure. Then after preparation of aldehyde and ketone, all the three method, that is method for preparation of aldehyde and ketone both. Then after method for preparation of aldehydes only. Then after methods for preparation of ketones only. Then after next physical properties of aldehyde ketone, that is over. Then chemical properties of aldehyde and ketone. In chemical properties of aldehyde and ketone, this time we are in the nucleophilic addition reaction. In nucleophilic addition of HCN is over, addition of NaHSO3 is over, addition of alcohol is over, and last time we had just got some information about the addition of ammonia. So mechanism was over. Which one is more reactive for nucleophilic addition reaction and why, that is over. Then after the addition of HCN to form cyanohydrine is over. Addition of NaHSO3 to form bisulfite addition complex is over. Addition of alcohol in aldehyde to form hemiacetal and acetal, that is over. Then after addition of alcohol in ketone to form ketal, that is all. In ammonia and its derivatives, I informed you कि if you will see the mechanism, if you will see the mechanism, then the mechanism is completes in two steps. In first step, hydrogen and NH2 is going to be attached to form addition complex, which on strong heating to give the final product. So means overall I informed you कि you need to just do two thing for the product. हमको mechanism नहीं लिखना है, we need to write a product. तो आपको ये बीच का स्टेप स्किप करना है एंड अमोनिया डेरिवेटिव में से H2 निकालना है, एल्डिहाइड कीटोन में से ऑक्सीजन निकालना है एंड रेस्ट डबल बॉन्ड से अटैच कर देना है. सो सी हियर फर्स्ट वन, दिस इज अमोनिया. सो वन बाय वन आपको लिखना है रिएक्शन विथ अमोनिया. In this reaction with ammonia and its derivative, you will write the first heading, subheading, reaction with ammonia. Then you will write when aldehyde or ketone react with ammonia, then it form imine or imine, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें. When aldehyde or ketone react with ammonia, then it form imine. देखिए फाइनल रिएक्शन में आपको वही बता रहा है कि H2 अमोनिया में से निकलेगा, ऑक्सीजन एल्डिहाइड कीटोन में से, एंड बोथ विल बी कंबाइंड बाय डबल बॉन्ड. बस यही करना है. H2 अमोनिया डेरिवेटिव में से रिलीज करना है, ऑक्सीजन एल्डिहाइड कीटोन में से, और डबल बॉन्ड से जो बचा अरेंज कर देना है एंड गिव द नेम. सो फर्स्ट सब हेडिंग, योर हेडिंग विल बी देयर केमिकल प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव. इसमें ये मैकेनिज्म आप लिख लीजिएगा मैकेनिज्म हेडिंग डाल के, लेकिन इसकी जरूरत हमको नहीं है, हमको कहीं नहीं लिखना है. देन सब हेडिंग विल बी देयर फर्स्ट reaction with ammonia. In this, you will write first statement, when aldehyde or ketone react with ammonia, then it form imine or imine. ठीक है. Then this equation खत्म हो गया. Next, reaction with alkylamine. Second, alkylamine or first degree amine. Reaction with first degree amine. So when aldehyde or ketone react with first degree amine, it form सिफ बेस. सिफ बेस सब्स्टिट्यूटेड आइमीन मत लिखिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे. इट इज सिफ बेस. दिस नेम इज आल्सो इन योर एक्सरसाइज. ये आपके जो है एक्सरसाइज में भी है टर्म, जो मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, सिफ बेस. व्हाट इज सिफ बेस? अगर ऐसे आएगा व्हाट इज आइमाइन और आइमीन, देन यू विल से व्हेन एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ अमोनिया, देन इट फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड आइमाइन और आइमीन. When aldehyde ketone react with first degree amine, then it form the product that is Sif base. And then equation, statement equation, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है. इसमें से H2 निकला, इसमें से O निकला, दोनों को कंबाइन कर दीजिए डबल बॉन्ड से. ओवर. नेक्स्ट थर्ड सब हेडिंग विल बी देयर reaction with hydroxyl amine. Hydroxyl amine means NH2OH. So when
एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, सब फिर से वही प्रोसेस देखिए, H2 and O डबल बॉन्ड बन जाएगा, सो इट फॉर्म प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड ऑक्सीन, ऑक्सीन, एल्डिहाइड ऑक्सीन, कीटोन ऑक्सीन, एल्डिहाइड ऑक्सीन, कीटोन ऑक्सीन, सम आर प्रोनाउंस इट ऑक्साइम, सो ऑक्साइम भी कहा जाए तो मतलब वही है प्रोनाउंस करने में। नाउ नेक्स्ट fourth subheading will be there, reaction with hydrazine, hydrazine, hydrazine मैंने उस दिन बताया था NH2 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 is called hydrazine, so in this you will write when aldehyde or ketone react with hydrazine, तो फिर से H2 और O निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, then it form हाइड्रेजोन, then it form हाइड्रेजोन, नाम से आएगा तब भी स्टेटमेंट यही लिखना है इक्वेशन के साथ, और रिएक्शन आएगा तब भी। नेक्स्ट फेनिल हाइड्रेजिन, फेनिल हाइड्रेजिन में दैट डे आई इन्फॉर्म की स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, यहाँ पे आपको क्या ऐड कर देना है, NH, NH ऐड कर दीजिएगा, देन बेंजीन रिंग रहेगा, NH रहेगा देन बेंजीन रिंग रहेगा, बस ये आपको ऐड कर देना है, मींस स्ट्रक्चर विल बी, इसका स्ट्रक्चर जो आप लिखेंगे इस जगह पे, दैट विल बी H2N single bond NH and then benzene ring. So this is the structure of phenyl hydrazine and इसमें से ये H2 निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा, so that will form phenyl hydrazone. So when aldehyde ketone react with phenyl hydrazine, then it form phenyl hydrazone, इसमें भी NH लगाना है। Now next, that is reaction with 2,4-DNP, 2,4-DNP, इस कंपाउंड का नाम है 2,4-DNP, फुल फॉर्म आई इन्फॉर्म्ड यू, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन में दूसरे और चौथे नंबर पे जो फेनिल हाइड्रेजीन है, इसमें सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो इसी को कहा जाने लगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। Then aldehyde ketone react with 2,4-DNP, 2,4-DNP नाम से आपके उसमें है 2,4-DNP, then it form a product, उसी तरह से addition product, this is addition product not the substitution product that is called 2,4-DNP derivative, जो प्रोडक्ट बनता है that is called 2,4-DNP derivative, उस प्रोडक्ट को कहते हैं 2,4-DNP derivative, और जो रिएक्टेंट होता है वो होता है 2,4-DNP, रिमेंबर दिस, 2,4-DNP रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है 2,4-DNP डेरिवेटिव, सो व्हेन एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद 2,4-DNP then it form addition product that is called 2,4-DNP derivative, that is called 2,4-DNP derivative, and then after this equation नाम सबका लिख दीजिएगा 2,4-DNP, 2,4-DNP derivative. Now next, this is semi carbazide, next heading will be there, semi carbazide, जाइड, सेमी कार्बाजाइड अमाइड ग्रुप है, ठीक है, सो NH2NH CO NH2, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड, फिर से वही H2O निकल गया एंड डबल बॉन्ड से आके अटैच हो गया, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजोन, दिस नेम इज गिवन इन योर एक्सरसाइज, सेमी कार्बाजोन, तो सेमी कार्बाजोन इज द प्रोडक्ट एंड सेमी कार्बाजाइड इज द रिएक्टेंट, सो व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड, जब एल्डिहाइड कीटोन सेमी कार्बाजाइड से रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म सेमी कार्बाजोन, तब ये सेमी कार्बाजोन बनाता है, सिंपल है, H2O निकाल के डबल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, रेस्ट विल बी सिमिलर. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन दैट इज रिडक्शन, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये रिडक्शन, सो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन दैट इज रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज ओवर. नाउ इन रिडक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन में यहाँ दो तरह का रिडक्शन है,
फर्स्ट वन रिड्यूस टू अल्कोहल मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन जो होंगे वो क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। एंड सेकेंड इज रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो एल्केन बनाएंगे। सो टू टाइप्स ऑफ रिडक्शंस आर शोन बाय aldehyde ketone. One is that in which they will form the alcohol. एक वो है जिसमें वो अल्कोहल बनाएंगे एंड सेकेंड इज दैट बाय विच दे फॉर्म द एल्केन जिसमें वो क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। तो सो कीप दिस इन माइंड कि aldehyde ketones have two types of reduction. First one by reduction they will produce the alcohol. Second by reduction they will produce the alkane और हाइड्रोकार्बन जो एल्केन बनाएंगे दैट इज बाय द टू नेम रिएक्शन वोल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। दीज आर द नेम रिएक्शन वोल्फ किस्नर रिएक्शन एंड क्लीमेंसन रिएक्शन भी कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं। सो रिडक्शन इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन दिस वी हैव सीन in alcohol chapter, preparation of alcohol. When aldehyde or ketone undergo reduction by the use of reducing agent, तीन reducing agent बताए थे, NaBH4 sodium borotetrahydride, LiAlH4 lithium aluminium tetrahydride and catalytic hydrogenation means H2NiPTPD. Preparation of alcohol method. Then I informed you if aldehyde will be, ठीक है, aldehyde will be undergo reduction by reducing agent, then it form first degree alcohol, and if ketone will undergo reduction then it form सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ये सब आपको पहले ही पता, और आपको बता दिया गया कि LiAlH4 स्ट्रॉन्ग था और NaBH4 वीक था और इसलिए NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर को नहीं करता। ये सब इंफॉर्मेशन आपके पहले के हैं, यहाँ पे बस ये लिखना है, ये लिख दीजिए या अल्कोहल वाला ही जाके लिख दीजिए, नो मैटर। नाउ रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन मतलब अब हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, एल्डिहाइड कीटोन दोनों की बात हो रही है, एल्डिहाइड कीटोन बोथ विल प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, देन दैट इज एल्केन। In this process the C double bond O is going to be convert into CH2. C double bond O किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में, मीन्स डबल बॉन्ड O मीन्स ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। सो दिस इज टू रिएक्शन दैट इज वोल्फ-किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन। दिस थर्ड वन इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दिस वन विद द यूज ऑफ रेड फास्फोरस ये आपके में नहीं है, फॉर एक्स्ट्रा पर्पज यू कैन रीड दिस बट इट इज नॉट इन योर बोर्ड सिलेबस। सो क्लीमेंसन when aldehyde or ketone heated with zinc amalgam alloy, this is not a compound, alloy and HCl, जिंक अमलगम और HCl से आपका टारगेट क्या है, जो टारगेट इज टू कम्स हाइड्रोजन टू रिमूव ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन चाहिए। सो दिस 4 HCl will be participate, 2 Cl will be go with Hg to form HgCl2, 2 Cl will go with Zn to form ZnCl2 and the 4H, 2H will comes and attach here and 2H will go with oxygen to form H2O. So ऑक्सीजन निकला, वहां से 2H से रिएक्ट करके H2O बना देगा, 2 हाइड्रोजन जो बचेगा उस ऑक्सीजन के प्लेस पे जाके CH2 बना देगा। सो ओवरऑल द रिड्यूसिंग एजेंट इज हियर zinc amalgam and HCl, mixture of zinc amalgam and HCl. In this, first of all, zinc amalgam will react with HCl to give the hydrogen. That hydrogen comes and react to form hydrocarbon. So this is Clemenson reaction or Clemenson reduction. If question will be there as name reaction, then you will write
Clemmensen reduction. When any aldehyde or ketone treated with zinc amalgam and concentrated as Cl, then it forms alkane. This reaction is called Clemmensen reduction and this equation. Now Wolff-Kishner reduction. It completes in 2 steps. Wolff-Kishner 2 स्टेप में ये भी वही प्रोडक्ट देगा. The same product we will obtain by Clemmensen reduction and Wolff-Kishner, but in 2 different way. Wolff-Kishner completes in 2 steps. First one, that is aldehyde ketone react with hydrazine, जो अभी आपने देखा. Aldehyde ketone react with hydrazine, then it form hydrazone. तो ये क्या बनाता है? हाइड्रोजोन. तो ये क्या बनाया? हाइड्रोजोन. And when this hydrazone is heated with ethylene glycol and KOH, ethylene glycol and KOH, then it form alkane. Then it form alkane. So when aldehyde of hydrazine then form hydrazone. When hydrazone is heated with ethylene glycol and KOH, then it form alkane. So question will be there, what is Clemmensen reduction? Then you will say when aldehyde ketone react with zinc amalgam in concentrated HCl, then it form alkane. And when aldehyde ketone treated with hydrazine, then it form hydrazone, which react with ethylene glycol and KOH, then it form, ठीक है, hydrocarbon, that is alkane. So both will form alkane, but Clemmensen reduction में जो reagent है that is zinc amalgam and HCl, and Wolff-Kishner में जो reagent है वो है hydrazine and ethylene glycol and KOH. So this is the reduction which is over. So 2 properties of aldehyde ketone is over. Reduction. So reduction and nucleophilic addition reaction is over. 2 are over. Now we are going to discuss the oxidation, and this is very important. Oxidation बहुत important है. So next one is there, that is oxidation. So now aldehyde and ketone undergo oxidation by use of 2 types of oxidizing agent, that is strong oxidizing agent and mild oxidizing agent. In mild oxidizing agent, in your syllabus the 2 oxidizing reagent are there, that is Tollens reagent and Fehling reagent. आपके सिलेबस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टॉलेंस रिएजेंट है और फेलिंग रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, विद द नेम टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट. नाउ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड मींस, तो आपको पहले ही बता दिया गया है. स्ट्रॉन्ग मींस विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी दोज which can oxidize only, ठीक है, aldehyde not ketone, which can oxidize only aldehyde not ketone, जो केवल aldehyde को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, that will be mild oxidizing agent. So mild oxidizing agent है Tollens and Fehling. So these Tollens and Fehling will be oxidize aldehyde, ठीक है, नॉट कीटोन. ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कीटोन को नहीं करेगा. दैट्स व्हाई टॉलेंस एंड फेहलिंग आर यूज, टॉलेंस एंड फेहलिंग आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. इसलिए इनका यूज करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन कराएंगे तो अगर रिएक्ट किया तो वो एल्डिहाइड होगा, नहीं किया तो कीटोन होगा. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट. इसलिए इसको रिएक्शन न करके, टॉलेंस रिएक्शन फेलिंग रिएक्शन न करके, इसको कहा जा रहा है टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट. सो व्हाट इज टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट? टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट इज विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट इज ऑक्सीडेशन. ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है.
In oxidation, these two are strong oxidizing agent or mild, then mild oxidizing agent. These two can be used to oxidize which type of organic compound, that is aldehyde. They are not able to oxidize the ketone. So these two are used to distinguish between aldehyde and ketone. Now see, first by strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, और मॉडरेट में या माइल्ड में टॉलेंस फेहली। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। As I informed you in the alcohol already, कि whenever the reaction of a strong oxidizing agent will be there, that final product will be carboxylic acid. Final product क्या होगा? Carboxylic acid होगा। ठीक है, so when aldehyde react or ketone react with a strong oxidizing agent, any of these three, then it form carboxylic acid. ठीक है, the difference is here कि in aldehyde only one carboxylic acid will be produced, but in ketone two carboxylic acid will be produced. aldehyde में केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा क्योंकि इसमें एक एल्किल ग्रुप है, कीटोन में दो एल्किल ग्रुप है। So it will form two carboxylic acid. That two carboxylic acid may be similar. वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम भी हो सकते हैं, बोथ आर प्रोपेनोइक एसिड, और मे बी डिफरेंट भी हो सकते हैं, इथेनोइक एंड ब्यूटेनोइक एसिड। सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग कि एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन में बस डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर अंडरगो oxidation with a strong oxidizing agent then produce carboxylic acid, but aldehyde produce just one carboxylic acid and ketone produce 2 mole of carboxylic acid. That may be similar, that may be different. Now the oxidation with mild oxidizing agent, स्ट्रॉन्ग वाला तो हो गया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज हम आपको बता दिए करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला है टॉलेंस टेस्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रीएजेंट। टॉलेंस टेस्ट में जो रीएजेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टॉलेंस रीएजेंट। स्क्रीन एंड वॉइस बोथ आर क्लियर? एनीवन प्लीज टेल मी? Yes, sir. Okay. Sir, Any? I Yes. am presenting something now. I mean, screen is stopped, I think. This time, are you able to see the tolerance test or not? Sir, reaction we are not. We can see now is oxidation. That flow chart, sir. Flow chart. Sir, it is clear to my screen. Maybe refresh your. Everyone, you are having same problem. This time I am changing my slide. Reaction मैंने Yes, sir, दो it is आपको दो changing. slide. Okay. And who was there? Who is saying कि not changing? Now it is Prasoon. Are you able to see my screen? I'm changing my screen. I think, sir, my network is not good. That's why it is happening. I am changing my network. Okay. So please maybe leave the class, then again join the class, rejoin the class. Maybe you will get a. So can I wait or I can start? Now visible, sir. Okay. So before that, Prasoon, I had shown these two.
ऑक्सीडेशन, माइल्ड स्ट्रॉन्ग, और फिर मैंने ये बताया कि कैसे एल्डिहाइड से केवल एक बनेगा और कीटोन से 2 प्रोडक्ट बनेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल आल्सो, दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने पूछा कि आवाज और स्क्रीन साफ है कि नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, टॉलेंट टेस्ट इज डन बाय टॉलेंस रिएजेंट। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? इफ ओनली द नेम, अगर केवल नाम की बात करें कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, देन यू विल से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, ये टॉलेंस रिएजेंट बना बनाया भी आता है एंड इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर इन लैब आल्सो। अगर आपको लैब में प्रिपेयर करना है या कैसे बनाया जाता है, सो सिल्वर नाइट्रेट नाम में कर रहा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करना है। सिल्वर नाइट्रेट विल बी गोइंग टू बी डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे। एक्वस अमोनिया विल बी इन एक्सेस अमाउंट, एक्वस अमोनिया एक्सेस अमाउंट में होगा। सो फर्स्ट इट विल फॉर्म Ag2O। पहले ये Ag2O बनाएगा, इट रिएक्ट विथ अनदर पार्टिकल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एक्वस अमोनिया, देन इट फॉर्म the final reagent that is टॉलेंस reagent, that is a complex compound। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन के हिसाब से नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डाईएमीन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड। डाईएमीन कोऑर्डिनेशन का नॉमेनक्लेचर देख लीजिए यूपीएससी। डाईएमीन लिगेंड का नाम हो गया सिल्वर। ठीक है, मेटल का नाम हो गया, पॉजिटिव चार्ज है 8 नहीं लगेगा, सो सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट 1, सिल्वर 1 एंड OH इज हाइड्रोक्साइड, डाईएमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, डाईएमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस reagent, but in your NCERT book this OH is not given, it is given in this form। सो जहां कहीं भी आपको आएगा वो ऐसे लिखा रहेगा AgNH3 होल ट्वाइस एंड पॉजिटिव। ठीक है, इस फॉर्मेट में वहां पे आपका लिखा रहेगा। OH को ये अलग कर दे रहा है बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आयंस, एज यू नो आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी जाता है और एक उसका बाहर का आयन आता है। ठीक है, सो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूला उसका ये है, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला ये है, बट रिएक्शन के समय सॉल्यूशन के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, इसलिए इस तरह लिखा रहेगा। ठीक है, और मे बी केवल ये लिखा रहेगा। ठीक है, सो पहला आपको बता दिया गया कि दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट इज व्हाट, that is reducing agent or oxidizing agent, then tolerance reagent is oxidizing agent. Which type of oxidizing agent? Strong or oxidize the aldehyde only? See, only aldehyde show the tolerant test, ketone do not show this test। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। अगर नाम पूछेगा तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक्वस अमोनिया के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे, जो बनेगा दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और फार्मूला पूछेगा तो फार्मूला है AgNH3 होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज OH, या केवल AgNH3 होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट प्लस चार्ज, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रिएक्शन जो फर्स्ट 2 स्टेप दिया हुआ है, दैट 2 आर नॉट रिएक्शन, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट बनाने का प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं लिखना है। नाउ दिस test is used to distinguish aldehyde and ketone from each other because this test is given by aldehyde। So when any aldehyde react with टॉलेंस reagent, तो आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका, इसको आप अपने में ब्राइटनेस बढ़ा के देख लेंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट इस तरह से कलरलेस होता है, जो राइट साइड वाला है टॉलेंस रिएजेंट कलरलेस होता है, एंड जब हम उसमें
एल्डिहाइड ऐड करते हैं, ऐड करके हीट करते हैं, इसको कम से कम 10 to 15 मिनट तक हीट करना होता है एंड द हीटिंग विल बी वाटर बॉयल हीटिंग। वाटर बॉयल हीटिंग का मतलब है बर्नर के ऊपर, ठीक है, वाटर बॉयल हीटिंग का मतलब है बर्नर के ऊपर बीकर रखेंगे, बीकर में पानी लेंगे, इस पानी में टेस्ट ट्यूब को डिप करके, टेस्ट ट्यूब का बॉटम से टच ना हो, पानी में टेस्ट ट्यूब रहेगा और पहले वाटर हीट होगा, फिर वो आपका टेस्ट ट्यूब हीट होगा, उसमें का मिक्सचर हीट होगा। सो फर्स्ट वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब, in this we will add the tolerance reagent, then our given compound, जिसमें हमको पता है या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन है, गिवन कंपाउंड, एंड देन आफ्टर वी विल प्लेस दिस इन, ठीक है, वाटर हीटिंग अरेंजमेंट। सो आफ्टर 10-15 मिनट दिस सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी ब्लैक, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। एंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो 4-5 मिनट और हीट करेंगे, then what will be happen in this process, this silver, जो सिल्वर है, ठीक है, इट इज इन Ag प्लस फॉर्म, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इट विल बी रिड्यूस, ये रिड्यूस होकर के Ag बना देगा, Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी अटैच टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, NH3 will be released out and OH react to form the H2O, OH react करके, जैसे OH है, 2OH will be react, 2OH will be react form H2O and O, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो हो गया वो जाके इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना गया, H2O निकल गया, सिल्वर आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को रिड्यूस करेगा, एंड अमोनिया रिलीज हो गया। सो इट फॉर्म दीज 4 प्रोडक्ट, ये 4 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उस 4 प्रोडक्ट में जो मैंने आपको कहा ब्लैक कलर पहले बनता, तो ब्लैक कलर सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, पहले सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा, और फिर ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ऑक्सीजन निकल के एल्डिहाइड के पास जाएगा और सिल्वर विल बी डिपॉजिट एट द इनर साइड वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। एंड जब आप टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो जैसे आपका मिरर होता है, मिरर कैसे बनता है, एक ग्लास होती है, ग्लास के एक साइड में पेस्टिंग की जाती है, तो सेम इज हियर, उस पे सिल्वर आके डिपॉजिट होगा वॉल पे और वो क्या बन जाएगा, सिल्वर मिरर, उसमें आप देखेंगे तो सिल्वर की तरह चमकेगा, लेकिन वो अंदर से उसका जो रहेगा पार्टिकल रहेगा, बाहर नहीं। सो टेस्ट ट्यूब जो हो जाएगा वो सिल्वर मिरर का वर्क करेगा, उसमें आपका चेहरा उतना बड़ा तो नहीं दिखेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सामने हमारे मिरर है, जो ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट से मिरर टाइप का हो जाएगा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अगर टॉलेंस, देखिए सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस पे, क्योंकि सिल्वर यहाँ से आएगा टॉलेंस रिएजेंट से, तो टॉलेंस रिएजेंट अगर सही है तो सिल्वर ज्यादा आएगा, तो सिल्वर मिरर पूरी तरह से दिखेगा, टॉलेंस रिएजेंट अगर सही नहीं है तो सिल्वर मिरर बहुत कम दिखेगा, ठीक है। सो व्हाट इज हैपन, व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर, इसको सिल्वर मिरर क्यों करे, सिल्वर जो ग्लास जो है टेस्ट ट्यूब की, इसके इनर वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा तो ये मिरर की तरह लगेगा, इसलिए इसको कहा जाए सिल्वर मिरर। सो व्हेन एल्डिहाइड हीटेड विथ टॉलेंस रिएजेंट, हीट करना है, ठीक है, देन इट फॉर्म सिल्वर मिरर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर मिरर टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर बनाता है और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इफ सिल्वर मिरर विल बी फॉर्म देन वी विल से दैट गिवन कंपाउंड इज एल्डिहाइड, और अगर सिल्वर मिरर नहीं बनेगा देन वी विल से दैट गिवन कंपाउंड इज कीटोन, एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों को टॉलेंस रिएजेंट के साथ मिक्स किए और हीट करना शुरू किए
अगर सिल्वर मिरर बन गया सो इट मीन्स दैट इज, ठीक है, एल्डिहाइड। सिल्वर मिरर नहीं बना सो दैट इज कीटोन। एंड रिमेंबर, जो ऑब्जर्वेशन है वो सिल्वर मिरर से होगा, इससे ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है लिक्विड। जो ऑब्जर्वेशन होगा सिल्वर मिरर से होगा, सिल्वर मिरर बना कि नहीं बना। तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। नाउ फेहलिंग टेस्ट, सो अगेन फेहलिंग टेस्ट, सो फेहलिंग टेस्ट इज अगेन डन फॉर द, ठीक है, एल्डिहाइड। इट इज आल्सो नॉट गिव द कीटोन, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को ये टेस्ट नहीं देता है। अनदर, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ फेहलिंग टेस्ट इज डन बाय फेहलिंग रिएजेंट। अब फेहलिंग रिएजेंट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। फेहलिंग रिएजेंट इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। फेहलिंग रिएजेंट जो होता है वो दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। वन इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन ए, अनदर इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन बी। सो फेलिंग रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। आपके लैब में दोनों रखा हुआ है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये पूरा मिक्स किया हुआ नहीं आता है। फेलिंग सॉल्यूशन पूरा मिक्स किया हुआ नहीं आता है, ये दो फॉर्मेट में आता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, सी एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दिए, जो सॉल्यूशन बना उसी को नाम दिया गया फेलिंग सॉल्यूशन ए। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, दैट इज एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एल्केलाइन बनता है, इसी को कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। इसका कॉमन नेम है रॉचेल सॉल्ट, रॉचेल सॉल्ट, ठीक है। सो जो ये होता है ये स्काई ब्लू कलर का होता है। आप जब देखेंगे तो कॉपर सल्फेट आप जानते हैं ये स्काई ब्लू कलर, और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। फेलिंग सॉल्यूशन बी का कैसा अपीयरेंस रहता है, ट्रांसपेरेंट। फेलिंग सॉल्यूशन ए का कैसा अपीयरेंस रहता है, दैट इज स्काई ब्लू कलर। स्काई ब्लू कॉपर सल्फेट आप जानते होंगे, क्लास 10 से देखते आ रहे हैं, ठीक है। ब्लू 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 क्या कहते हैं उसको, ब्लू करके कुछ नाम है उसका, ठीक है, ब्लू क्रिस्टल उसके होते हैं। ब्लू सो विट्रॉल स्काई सर। ब्लू, हाँ ब्लू विट्रॉल, ठीक है। सो ब्लू विट्रॉल, सो ये स्काई ब्लू कलर का रहेगा और ये ट्रांसपेरेंट कलर का रहेगा। हम जब रिएक्शन कराने जाते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में दोनों को ऐड करते हैं, इक्वल अमाउंट में दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। इक्वल अमाउंट में फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन बी को जब ऐड करते हैं तब इसका कलर ये हो जाता है जो आपको दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में। जो हमारे इंक का कलर इस समय स्क्रीन पर है ब्लू, इस तरह से इसका कलर हो जाएगा इंक ब्लू, ठीक है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तब पहले वो स्काई ब्लू था, वो ट्रांसपेरेंट था, इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे तो हमारा कलर ये हो जाएगा इंक ब्लू। और दूसरा काम हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज 10-15 स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट इन लैब, सो सबको अलग अलग न दे करके बीकर में एक लेते हैं, उस बीकर में 10-10 ml या 20-20 ml दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो बीकर में जो आपको फेलिंग सॉल्यूशन का कलर दिखेगा, फेलिंग रिएजेंट का कलर इंक ब्लू होगा। इसके एक सिंगल सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो फेलिंग सॉल्यूशन ए का कलर स्काई ब्लू होगा, फेलिंग सॉल्यूशन बी का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, और फेलिंग रिएजेंट का कलर या सॉल्यूशन का कलर वो इंक ब्लू होगा। अब करेंगे क्या, सॉरी, अब करेंगे क्या, पहला काम हमारा फेलिंग रिएजेंट बनाना है, तो फेलिंग रिएजेंट में दोनों को ऐड करेंगे तो हमको इंक ब्लू मिला। इस इंक ब्लू में वी विल ऐड द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे एंड देन वी स्टार्ट टू हीट इट। अब इसको हीट करेंगे, सेम वाटर बॉयल हीटिंग, जैसा टॉलेंस में था वैसे ये भी है। बीकर में वाटर लेंगे और 10-15 मिनट तक हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तब ये
लाइट जो आपका ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर से ये कलर चेंज होगा, ग्रीन होगा, और ग्रीन के बाद ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ब्लू से ग्रीन होगा, ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। रेडिश ब्राउन अगर हो गया तब इसको आप थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। when you will leave this for 5 minutes or 2 minutes, so all the reddish brown particle will be settled down, पूरे रेडिश ब्राउन पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दिस रेडिश ब्राउन इज इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। देखिए रेडिश ब्राउन पीपीटी है, इसलिए मैंने कहा कि छोड़ देंगे। तो ये आप इसको थोड़ा जूम इन करके देखिए तो ऊपर हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, नीचे आपका सेटल डाउन होता हुआ समझ में आएगा। सो रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन नहीं बनेगा, it will not form reddish brown solution, it will form reddish brown ppt। थोड़ी देर छोड़ेंगे, पीपीटी नीचे बैठ जाएगा, ऊपर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इफ रेडिश ब्राउन पीपीटी विल बी फॉर्म, इट मीन्स, इसका मतलब है कि दिस इज एल्डिहाइड, जो दिया गया था वो एल्डिहाइड था। इफ रेडिश ब्राउन पीपीटी विल नॉट फॉर्म, इट मीन्स दैट इज कीटोन, इसका मतलब वो क्या होगा, कीटोन होगा। इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, फिर से वही, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH होल ट्वाइस, यही फेलिंग सॉल्यूशन होता है। जैसे वहां पे टॉलेंस रिएजेंट को अलग अलग करके दिखाया गया, वैसे यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया जा रहा है। सो व्हाट इज हैपन, फिर से वही प्रोसेस यहाँ पे। अब क्या होगा, फिर से दिस H2O मीन्स OH विल बी रिएक्ट टू फॉर्म H2O, ये H2O बनाएगा। सो इट विल कम्स हियर, ये यहाँ पे आएगा और एक ऑक्सीजन दे जाएगा। तो एक कॉपर को रिड्यूस करेगा, ठीक है, और बनाएगा Cu2O। Cu2O पहले देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल गिव द ऑक्सीजन, दो नेसेंट ऑक्सीजन ये दिया, बोथ द नेसेंट ऑक्सीजन विल कम्स हियर। सो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 है। सो ये क्या बनाएगा, CuO, दो पार्टिकल CuO का, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऑक्सीजन का -2, सो CuO बनाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। एंड देन आफ्टर हीटिंग, जो हीट कर रहे हैं, ड्यू टू हीटिंग दिस विल कन्वर्ट इनटू Cu2O and release one nascent oxygen, and that nascent oxygen will be oxidize this। पहले ये CuO बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फिर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन देगा, इसीलिए हमको स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए 10 मिनट 15 मिनट तक। ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन देख के इसको ऑक्सीडाइज कराएगा एंड अपने आप को रिड्यूस करेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1, Cu2O, दोनों कॉपर का मिला के +2 और ऑक्सीजन का -2, सो +1। सो इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू फॉर्म द क्यूप्रस ऑक्साइड, नॉट क्यूप्रिक ऑक्साइड। दो तरीका है, या तो क्यूप्रस ऑक्साइड कहेंगे, जो रेडिश ब्राउन पीपीटी है दैट विल बी क्यूप्रस ऑक्साइड, और कॉपर 1 ऑक्साइड, स्टॉक नोटेशन क्लास 11 का, कॉपर 1 ऑक्साइड कहेंगे या क्यूप्रस ऑक्साइड कहेंगे। क्यूप्रस, क्यूप्रिक नहीं। तो पहले ये क्यूप्रिक बनाएगा, क्यूप्रिक रिड्यूस होकर के क्यूप्रस बनाएगा। तो वही जब हम हीट करते हैं, मैंने आपसे कहा जब आप हीट करेंगे तब ये रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा। तो क्यूप्रस से क्यूप्रस, कॉपर सॉरी क्यूप्रिक कॉपर 2 था, कॉपर 2, तो ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, तो वहां पे ब्लू ग्रीन कलर आ रहा था। फिर जैसे हीट किए तो ये कन्वर्ट हो गया क्यूप्रस में, क्यूप्रस का कलर हो गया रेडिश ब्राउन, सो यहाँ पे रेडिश ब्राउन आ गया। और ये रेडिश ब्राउन कलर आपको प्रूव कर रहा है कि इट इज एल्डिहाइड नॉट कीटोन। सो व्हेन टॉलेंस टेस्ट में, फेलिंग टेस्ट में क्या लिखेंगे, फेलिंग टेस्ट इज डन बाय द फेलिंग रिएजेंट, it is a mixture of two solution, failing solution A and failing solution B. Failing solution A is aqueous copper sulfate, failing solution B is alkaline sodium potassium tartrate or Rossel salt. Failing solution A is sky blue color solution, failing solution B is transparent solution. When these two solutions are mixed in equal amount, then it give
a ink blue solution that is called Fehling solution or Fehling's reagent. When Fehling reagent added with aldehyde and heated for 10 to 15 minutes in water boil heating, then it formed reddish brown PPT, which show that it is aldehyde. तब ये क्या बनाता है? रेडिश ब्राउन PPT बनाता